Hi friends, hope you all are doing well. So today we'll start with the topic upper motor neuron and lower motor neuron lesions, in which majorly we'll today study about facial palsy, Bell's palsy, Ramsay-Hunt syndrome, and in my next YouTube short video, I'll tell you something regarding the Bell's phenomena. So let's get started. So starting with the upper motor neuron and lower motor neuron lesions, what are these actually and how does it happen? So briefing you about the diagram which I have shown here. So basically motor neuron, as obviously we are explaining about facial palsy. Here we should know that motor neuron obviously will supply to the face. So I have drawn a diagram of face and I have divided it into two parts. The upper half is the upper face and lower half is the lower face. Also, I would like to tell that what happens in motor neuron is motor neuron, obviously facial motor neurons have to supply to the face. But वो चीज कहाँ से आती है? The nerves travel from the cerebral hemispheres, the right and the left side cerebral hemispheres to the face. Now, when they have to travel to the face, obviously in between the cerebral cortex and the face, there is a neuron. There is a neuron जहाँ से हमारे जो messages हैं, जो nerves हैं, वो travel होती हैं to supply to the face. So this is a complete summarized form where I have explained both the upper motor neuron lesions and the lower motor neuron lesions, where I have described that the course of motor neuron, facial motor neuron, is from the cerebral cortex. I have told you from the cerebral cortex to the face. So let's first get to know about upper motor neuron lesions. What basically happens is, first of all, see where my pointer is. This is basically a neuron. Okay, so neuron is divided into two halves. The upper half, which is the orangish part, is the upper motor neuron, and the lowermost part is the lower motor neuron of the facial nerve. Okay, so what happens is, ये चीज हमें एक क्रक्स के फॉर्म में याद रखनी है in order to understand this topic well, कि जो हमारा अपर मोटर न्यूरॉन है that is supplied by both the hemispheres, right and left side का जो हेमिस्फीयर है दोनों से ही हमारा जो अपर मोटर न्यूरॉन है उसको सप्लाई मिलेगा. ठीक है. एंड ऑलवेज रिमेंबर, अगर मैंने ये एक साइड का पूरा न्यूरॉन बनाया है, तो सपोज ये राइट साइड का मैंने न्यूरॉन बनाया है, तो ये लेफ्ट साइड जो है वहां पे भी होगा. ठीक है. तो अभी आई एम एक्सप्लेनिंग जस्ट द राइट साइड फॉर यू गाइस. ओके, सो व्हाट हैपेंस इज कि अब कोई लीजन इस न्यूरॉन के ऊपर हो जाए, चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर, ऑब्वियसली ये न्यूरॉन के ऊपर कोई चीज हो जाए, कोई लीजन हो जाए, तो दैट लीजन इज नोन एज अपर मोटर न्यूरॉन लीजन. बट यही कोई लीजन जो है इस मोटर न्यूरॉन के नीचे हो जाए, ओके, सो दैट इज कॉल्ड द लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन. सो इन अपर मोटर न्यूरॉन लीजन क्या होता है? आई टोल्ड यू, अपर मोटर न्यूरॉन में हमारे जो नर्व्स आ रही हैं वो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर से आएंगी. ओके, सो अगर मैं कहूँ जैसे, और हमारा जो लोअर मोटर न्यूरॉन का जो नर्व्स हैं, that basically comes from the opposite hemisphere. So for example, I am talking of just the right side. तो जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, जो हमारी नर्व्स हैं, वो हमारे ऑपोजिट मतलब लेफ्ट साइड ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स से हमारी नर्व्स जो है वो आएंगी. ठीक है. सो ये हमारा अपर न्यूरॉन है जो लेफ्ट वाली साइड से भी आ रहा है और राइट वाली साइड से भी आ रहा है एंड हमारे अपर फेस को सप्लाई कर रहा है. गॉट इट. देन ये हमारा जो है, ये ऑब्वियसली हम हमारे को लोअर फेस को सप्लाई करना है राइट साइड के. ठीक है. तो हमारा लेफ्ट साइड ऑपोजिट साइड से सेरेब्रल हेमिस्फीयर से the nerves will come, motor neurons will come and supply the lower face. अब now talking about upper motor neuron lesion. अगर कोई इस न्यूरॉन के ऊपर लीजन हो गया, suppose this, तो ये नर्व भी डैमेज हो जाएगी एंड ये नर्व भी डैमेज हो जाएगी. तो अगर हमारी ये नर्व डैमेज हो गई तो ऑब्वियसली ये नर्व भी डैमेज हो जाएगी. ठीक है. अब ये नर्व डैमेज होगी तो दिस नर्व इज सप्लाइंग द लोअर पार्ट ऑफ द फेस. ठीक है. तो लोअर पार्ट ऑफ फेस को सप्लाई कर रहा है तो हमारा लोअर फेशियल पैल्सी हो जाएगा. बट अब हमारा ऊपर वाला पार्ट क्यों नहीं पैरालाइज हुआ?
बिकॉज जो हमारा अपर मोटर न्यूरॉन है दैट इज नॉट ओनली सप्लाइड बाय लेफ्ट पार्ट of the cerebral cortex but it is also supplied by the right वाला. So right वाले को तो कुछ हुआ नहीं, right वाला तो बिल्कुल सही है. ठीक है. So right वाला जो था that is also supplying upper face, इसलिए हमारा upper face जो है वो paralyze नहीं हुआ. ओके. सो लोअर फेस जो है उसका पैरालिसिस जो हुआ है दैट इज फ्रॉम द ऑपोजिट साइड. ओके. सो ऑपोजिट साइड बेसिकली इज हमारी ऑपोजिट साइड को क्या कहते हैं हम कॉन्ट्रालेटरल साइड. यही अगर हम लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली लोअर मोटर न्यूरॉन मतलब हमारा ये न्यूरॉन से नीचे अगर कोई लीजन हो जाए तो ऑब्वियसली यहाँ लीजन हो जाएगा. तो दिस नर्व विल ऑल्सो गेट डैमेज एंड दिस नर्व विल ऑल्सो गेट डैमेज. सो व्हाट विल हैपन, हमारा लोअर फेस भी, क्योंकि ये नर्व जो है दैट इज कमिंग टू द लोअर पार्ट ऑफ द फेस, तो हमारा लोअर पार्ट ऑफ द फेस भी पैरालाइज हो जाएगा. एंड ये जो इस साइड से हमारी नर्व आ रही थी बिकॉज ये ऑरेंज वाला भी नर्व जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया विच वॉज सप्लाइंग द अपर पार्ट ऑफ फेस, इसलिए we'll get the paralysis of upper side of the face. This upper and lower part of the face is involved on the same side. So ipsilateral side paralysis जो है हो जाएगा in the case of lower motor neuron lesion. So lower motor neuron lesion का example is Bell's palsy. Okay, so lower motor neuron example is Bell's palsy जिसमें हमारा upper and lower part of the face of the same side जो है of the same side of the ipsilateral side जो है उसका पैरालिसिस हो जाएगा यूनिलेटरल साइड का. ओके. एंड यही अगर हम अपर मोटर न्यूरॉन की बात कर रहे थे तो हमारा ऑपोजिट साइड कॉन्ट्रालेटरल साइड जो था वो हमारा पैरालाइज हो रहा था. ओके. नाउ एज वी ऑल नो फेशियल नर्व की हम बात कर रहे हैं. सो इट इज द सेवेंथ क्रेनियल नर्व जो हमारे फेशियल मसल्स जो है मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन को सप्लाई करते हैं. ठीक है. और अगर इसी फेशियल नर्व के अंदर डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी, डिस्टर्बेंस आ जाएगा, देन इट विल लीड टू अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स. ओके. सो एक मैंने ब्रीफ समराइज्ड फॉर्म में दोनों के डिफरेंसेस बताए अपर एंड लोअर के. अब हमने बात करी थी कि लोअर वाला जो है वो सेम साइड को इन्वॉल्व करता है, यूनिलेटरल साइड का जो है अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द फेस का हमारा पैरालिसिस हो जाएगा. एन एग्जाम्पल आई टोल्ड यू अबाउट द बेल्स पैल्सी. ओके. सेम साइड इन्वॉल्व है. देन क्या हो जाएगा, और अब आप ये डायग्राम देखिए. दिस पेशेंट एक सेम साइड पे है. ठीक है. दूसरा साइड इसका नॉर्मल है. जो हमारा सेम साइड इन्वॉल्व है दैट इज फ्लैट, एक्सप्रेशनलेस. एंगल ऑफ द माउथ जो है वो उसका ड्रूप कर रहा है, ड्रूल कर रहा है. तो एंगल ऑफ द माउथ का ड्रूलिंग की वजह से देयर विल बी सलाइवा ड्रॉपेज. ठीक है. सलाइवा ड्रिबल करेगा माउथ से. ओके. देन द पेशेंट सी रेडनेस है आईज में, इन द पेशेंट आईज. सो दैट मीन्स टू से कि पेशेंट इज नॉट एबल टू क्लोज हिज और हर आईज. सो क्लोजिंग ऑफ द आईज में प्रॉब्लम है एंड फ्राउनिंग ऑफ द फोरहेड भी नहीं हो पा रहा है. ठीक है. जिस वजह से tears are there in the eyes. ठीक है. An example, you know, Bell's palsy. और and if we talk about the upper motor neuron lesion, तो I told you कि opposite side का basically paralysis था, contralateral side का. Clinical features are same as that of lower motor neuron lesion, but इसमें सिर्फ difference ये है upper और lower में कि जो upper वाला है इसमें ना हमारा जो फ्रंटालिस मसल है, जो फोरहेड का फ्रंटालिस मसल है दैट इज नॉट इन्वॉल्व. इसलिए पेशेंट ना फ्राउनिंग एंड ऑल जो है वो कर सकता है. दूसरी चीज, एज आई टोल्ड कि लोअर मोटर न्यूरॉन में की आईज बहुत ही रेड हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है, टीयर्स आने लग जाते हैं क्योंकि पेशेंट अपनी आईज ब्लिंक नहीं कर पाता है, क्लोज नहीं कर पाता. बट अपर मोटर न्यूरॉन में द पेशेंट इज एबल टू क्लोज द आईज. सो देर आर टू डिफरेंसेस. एक वो आईज क्लोज कर पाता है, आईज ब्लिंक कर पाता है. ठीक है. और दूसरा वो फरोइंग ऑफ द फोरहेड जो है कर पाता है इन अपर मोटर न्यूरॉन लीजन. ओके. सो there are basically three sites which are involved in the facial nerve paralysis. First is at the level of pons. तो ये याद रखना है जो at level of pons है उसमें हमारा सिक्स्थ एंड सेवंथ cranial nerve जो है वो इन्वॉल्व होगी. ठीक है. सेवंथ cranial nerve ऑब्वियसली अगर डैमेज होगी, इन्वॉल्व होगी तो फेशियल नर्व पैरालिसिस होगा. सिक्स्थ cranial nerve के इन्वॉल्व होने से हमारा हेमीप्लेजिया होता है. प्लस हमारा जो पैरालिसिस है अपर लिम्स मतलब हमारे जो अपर आर्म्स है ऑपोजिट साइड के वो
डैमेज हो जाएंगे, पैरालिसिस हो जाएगा। दूसरा है सेरिबेलोपोंटाइन एंगल इन्वॉल्व है, तो इसमें हमारा 7th एंड 8th क्रेनियल नर्व जो है वो इन्वॉल्व होगा। 7th क्रेनियल नर्व से ऑब्वियसली फेशियल नर्व पैरालिसिस होगा। 8th क्रेनियल नर्व से हमारा वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व इन्वॉल्व होगा, तो डेफनेस हो जाएगी एट द मिडल ईयर लेवल। तो मिडल ईयर के लेवल पे ऑब्वियसली फेस पार्ट्स जो है वो अफेक्टेड होंगे। दूसरी चीज है हमारा जो एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग है वो अफेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से देयर विल बी लॉस ऑफ टेस्ट। ठीक है, सो 3 sites were involved in facial nerve paralysis. Now let's move on to Bell's palsy. Now I have told you Bell's palsy is an example of lower motor neuron lesion, जिसमें हमारा same side of the upper and the lower face involve होता है, same side का ipsilateral side का, जिसमें मैंने बताया था माउथ जो है एंगल ऑफ माउथ का ड्रूलिंग होता है। ठीक है, सलाइवा जो है वो ड्रूल आउट करेगा, देन एक्सप्रेशनलेस एंड फ्लैट फेस होगा, देन patient is not able to close or wink or blink the eyes, furrowing of the forehead will not be there in Bell's palsy. Okay, and anterior 2/3 of the tongue will be involved, जिसकी वजह से हमारा जो टेस्ट है वो नहीं हो पाएंगे। ओके, सो मेन जो चीजें डिस्क्राइब करती है फॉर अ बेल्स पैल्सी इज दैट इट इज अ लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, यूनिलैटरल साइट का है, सेम साइट का है, इडियोपैथिक है, एंड साइट। सो साइट इन्वॉल्व इज लैब्रिंथाइन पोर्शन ऑफ फेशियल नर्व विद इन द फेशियल कैनाल। सो आई हैव दिस इज जस्ट अ ब्रीफ टू एक्सप्लेन कि क्या क्या होता है, विच आई हैव एक्सप्लेन यू अर्लियर क्लिनिकल फीचर्स। So what happens is in Bell's palsy, there is basically a swelling of nerve. Nerve की swelling. तो that means to say कई बार क्या हो जाता है, ट्यूमर हो गया, कोई इडियोपैथिक कॉज ही हो गया, कोई ट्यूमर हो जाता है जिसकी वजह से वो नर्व के ऊपर एक कंप्रेशन कॉज कर देता है, व्हेन इट कॉजेज एक प्रेशर क्रिएट कर देता है ऑन टू द नर्व। जब नर्व के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होएगा, देन नर्व जो है दैट विल गेट कंप्रेस्ड। nerve compress होएगी, so it will interrupt in the motor supply of the face of the involved site. Causes क्या हो सकते हैं of Bell's palsy? It can be diabetes mellitus, it can be herpes simplex virus infection which is main cause, pregnancy हो सकता है, पैरोटिड ग्लैंड की कोई इंजरी हो जाए, सपोज ट्यूमर हो जाए पैरोटिड ग्लैंड का जिसकी वजह से सर्जरी करनी पड़े, उसमें हो सकता है, कोल्ड एक्सपोजर की वजह से, कोई ट्रॉमा हो गया जब एक्सट्रैक्शंस कर रहे हैं हम डेंटल की तब। Clinical features I have explained earlier. This is just a summarized form. You can just view this. Speech difficulty हो सकती है, then mouth का angle deviate है, saliva drool out करता है. I have explained you for, in my previous slides. अब now what can be the treatment? I told you कि obviously हमारे जो eyes हैं उसमें से tears आते हैं and redness होती है, so eye drops for lubrication is must. Steroids दे सकते हैं, prednisolone दे सकते हैं। देन ऑब्वियसली herpes simplex वायरस की वजह से अगर इन्फेक्शन हुआ है, अगर ये फेशियल नर्व पैरालिसिस हुआ है लोअर मोटर न्यूरॉन का, तो एंटीवायरल ड्रग्स दे सकते हैं लाइक एसाइक्लोविर। एंड ऑब्वियसली नर्व कंप्रेस हुई थी, सो वी हैव टू डीकंप्रेस दैट नर्व बाय सर्जिकल मेथड्स। नाउ अ शॉर्ट थिंग अबाउट रैम्से हंट सिंड्रोम। सो हमें इस पिक्चर में क्या रैम्से हंट सिंड्रोम क्लियर हो रहा है इस पिक्चर को देखकर, दैट एक लेडी है, एक लेडी पेशेंट इज देयर जिसका यूनिलेटरल साइड का फेशियल नर्व पैरालिसिस हुआ है, मतलब उसको लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है, यूनिलेटरल साइड सेम साइड इन्वॉल्व है। ओके, बेल्स पैल्सी है एक साइड की। एंड अगर हम ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स देखें तो देयर आर वेसिकल फॉर्मेशंस। सो देयर इज बेसिकली अ ट्रायड ऑफ थ्री थिंग्स which you have to remember in Ramsay Hunt syndrome. That is facial palsy है, 8th cranial nerve deafness हो गई है, and external auditory meatus पर herpetic vessels are involved. Okay, so basically what happens is it is due to herpes zoster virus, okay, shingles, and it involves the geniculate ganglion. In my previous video in trigeminal nerve I have told you geniculate ganglion के बारे में, sorry, in the facial nerve, in the course of facial nerve, I have told you about the geniculate ganglion, in which I have told you that geniculate ganglion जब हमारा फेशियल नर्व जो है वो मिडल ईयर में एंटर करता है, उससे पहले फेशियल नर्व एंटर्स इनटू अ गैंग्लियन विच इज नोन एज द जेनिकुलेट गैंग्लियन।
So this was all about Bell's palsy, facial nerve paralysis, and Ramsay Hunt. Hope you liked the video. Hope you learned a lot. You can drop down the things you need me to make you clear in my further videos, and I'll be uploading a short video on Bell's phenomena in my further class. So hope you like it. If you like my video, please subscribe my channel, hit a thumbs up for my video, and do share. Thank you. Have a nice day.